an organic compound E which has the following composition by mass. It contains carbon, hydrogen and oxygen, and the question says कि empirical formula को calculate करें. So you can see that empirical formula refers to the simplest formula, simplest ratio of elements. इसको show करता है. So I can find the empirical formula: carbon ratio hydrogen ratio oxygen 48.7, 8.1 and 43.2. So I took the percentages like this. Then I need to divide them by their AR. For carbon, it's going to be 12. For hydrogen, it's going to be 1. And for oxygen, it's going to be 16. Could somebody please help me out with the value 48.7 over 12? What does it turn out to be? Quickly, let me help in doing the calculations, please. 48.7 over 12. Okay, so that's going to be 1.5. It's 1.5 or it's 4.1? That's 4.1. Okay, 4.05, 4.1. Okay, so I'm going to use 4.1 or 4.05. मुझे खुद करना पड़ेगा. चलो मैं खुद कैलकुलेटर कर लेती हूँ. So I could know what actually is the right answer. 48.7 divided by 12. So that's equal to 4.05. ठीक है. उसके बाद यहाँ आ गया 8.1 और अगर 43.2 करें, I would like you all to do it with me, right? Instead of simply looking, please do it out. And then I get 2.7. अब पता है इसमें जो सबसे empirical formula में easy way होता है to get to the right answer, वो ये होता है कि आप अपने ना decimal places को equivalent कर लो हर एक केस में. For example, you can see this is 2 decimal places, this is 1 decimal place, this is 1 decimal place. So what you can do is कि आप फिर सभी को 2 decimal places में कर लो, फिर आपका आंसर ना बड़ा अच्छा सा आता है. So you can write it by adding an additional 0 like this. Even if you don't do, answer आपका तब भी आ जाएगा. So you can see कि अब आपके सब एक तरह के decimal places में आ गए. Now divide by the smallest value, that is going to be 2.70, 2.70 over 2.70. तो अब अगर हम empirical formula निकालें तो let us try to calculate कि क्या आता है. This turns out to be 1.5. अगर हम 8.10 को 2.70 पे करें, this turns out to be 3. और अगर हम इसको करें, this is 1. So you can see कि यहाँ पे मेरे पास कार्बन 1.5 आ रही है. तो आपने कभी भी empirical formula को points में नहीं लिखना. So we always multiply it by a factor of 2 to convert it to the nearest possible whole number. And you can see जब मैंने ये किया 1.5 को 2 से, that turns out to be 3 carbons. वो हमारे पास 3 carbons आ गई. हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो गई, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गई. So this is going to be the empirical formula. ये हमारा empirical formula आ गया. फिर उसने हमें कहा कि when vaporized in a suitable apparatus, 0.130 grams of E occupied a volume of 58.0 cm cube. So this basically is the volume. This is the mass given to us, and the pressure is given to us in Newton per meter square, followed by a temperature that is given in degrees Celsius. The question says that using the expression PV is equal to MRT over MR, calculate the MR of E. So examiner has already converted moles wala formula into mass over MR for your convenience, and you simply have to convert the values into the right units and simply put them into the formula, so you could be able to find out the MR of E. So this is something that we have to calculate. Okay, so could you all please tell me कि इसको क्या करूं 58.0 को? That should be what? 58 multiplied by? Yes, my dear kids, quickly let me know please. 58 को क्या करूं? 58 multiplied by? That's going to be 10 raised to power minus 6. शाबाश, बिल्कुल ठीक है. उसके बाद देखो प्रेशर को मुझे कुछ भी नहीं करना because it's already is Newton per meter square. टेम्परेचर को क्या करूंगी?
127 plus 273. So these are the conversions. Could you all please tell me what is the value of temperature by converting it into kelvins? What answer do we get? I think that's going to be 400, right? So that's going to be 400 Kelvin. So the temperature is 400 Kelvins. And this is the volume. Mass is already given. Pressure needs to be kept same. So now we are going to put it into this formula. PV is equal to MRT over MR. So since I want to find out the MR, I'm going to take it onto this side. PV into MR is equal to MRT. So MR is equal to MRT over PV. So mass is 0.130, R is equal to 8.31, temperature is equal to 400 over MR needs to be calculated. और यहाँ पे जो बाकी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज आनी है उसको पुट कर लेती हूँ. So I'm going to put the values of pressure यहाँ पे, sorry, इसको नीचे ले आते हैं. Pressure is 1.00 into 10 raised to power 5 और volume है हमारे पास 58 into 10 raised to power minus 6. This is equal to the MR. Find out the MR and tell me your individual answers. So we could figure out कि किसका क्या आया है. Isha says, ma'am, that is equal to 74.5. बाकी सब भी कैलकुलेट कर लें so we could know. एक बच्चे का और 74.5 आ गया. ठीक है, जैनब का भी आ गया. What about the rest? ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ. 74.50 आंसर कैसे लिखते हैं. जो आपके क्वेश्चन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होती है ना, वी ट्राई ओवर लेवल बेस्ट कि हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग आए, हम उतना जरूर लिखें, ताकि उसका मतलब होता है कि इतना तो होना ही चाहिए. अब आप देखो, योर आंसर लोवेस्ट वैल्यू इन द प्रोवाइडेड डेटा इज इक्वल टू 1 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, सो दिस इज इक्वल टू 1 डेसिमल प्लेस. तो इसका मतलब है कि मैं अपनी वैल्यू इतनी लाजमी लिखूंगी ही लिखूंगी. अगर मैं इससे कम करती हूँ, मैं अपने क्वेश्चन में कुछ गलती कर रही हूँ. ठीक है, इसी तरह जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने तो होने चाहिए ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम यहाँ पे इतना आंसर जरूर इस तरीके से लिखेंगे. तो आपने ये चीज करनी है. ठीक है, हफ्सा आपका भी 74.5 आ गया, तो आपने ये चीज याद रखनी है. अदरवाइज हम स्टूडेंट्स को मोस्टली कहते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखाया करें, लेकिन मैंने आपको ये रूल बता दिया कि लोएस्ट डेसिमल प्लेस जो आपके क्वेश्चन में होती है उतना जरूर आपका आंसर हमेशा होना चाहिए. सो एम आर इज इक्वल टू 74.5. अब उसने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करो. अब पता है इसके लिए क्या करना है. लेट अस रीकैप योर ओ लेवल स्टफ. उसमें हम करते थे, एक फॉर्मूला होता था एन, जिसको हम कहते थे एम आर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम आर ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला. इससे हमारे पास एक एन की वैल्यू आ जाती थी. अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एम आर कितना आया. दिस टर्न्स आउट टू बी 74.5. और एम्पेरिकल फॉर्मूला की क्या एम आर है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हाइड्रोजन की 1 होती है वैल्यू, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ऑक्सीजन इज 16 मल्टीप्लाई बाय 2. तो जरा एम्पेरिकल फॉर्मूला का बताइएगा कितना एम आर आता है. What is the value? That is going to be 74. तो ये 74 आ रही है. तो 74 को 74.5 को 74 पे डिवाइड किया तो n का वैल्यू रफली दिस इज इक्वल टू 1. n आ गया, n इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये आपके पास आ गया. तो अब आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला पुट करना है. यू विल राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला.
सो एन इज बेसिकली दैट होल नंबर कि जिसके साथ आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा. सो आई विल बी प्लेसिंग 1 हियर. एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका क्या निकला था? दैट इज C3H6O2. तो वो यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है. तो ये क्या बनेगा? 1 से मल्टीप्लाई के बाद C3H6O2, विच शोज कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर योर एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर इंटायरली द सेम. ठीक है. तो आपने इस तरीके से इसको करना था. इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? अब देखो इसमें उसने मोल्स को भी यूज किया था और उसने सारी चीजें पूछी थी. सो आर यू ऑल क्लियर अबाउट दिस? एनी कंफ्यूजन? बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस ना वो काफी पूछता है. सो आई होप दैट दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबडी, राइट? तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल करवा दी है. इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको कन्वर्जन्स का पता हो सो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. अच्छा, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ सो आई कुड अटैच इट इनटू योर नोट्स. And before moving ahead, चलो उसके बाद लेट अस मूव ऑन टू द वर्क जो हम लोग कर रहे थे. हुसैन, ये किसका माइक हुआ था? टुडे आई टुक एन ऑनलाइन क्लास ऑफ द कैंपस बॉयज की, और उन लोगों ने मुझे सारे ट्रक की आवाजें पता नहीं क्या क्या सुनवा दिया. सो आई डोंट नो व्हाई किड्स डू लाइक दिस. मेरा आई गॉट डिस्कनेक्टेड. ओके ओके, दैट्स फाइन. ठीक है, कोई मसला नहीं है. अच्छा. सो दिस इज समथिंग जो हमारी गेसेस से रिलेटेड थी और ये मैंने आपसे कर लिया. अच्छा, अब मैं आपको ना एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ विच इज प्रोबेबली द सॉल्व्ड स्पेसिमेन. जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. बच्चे ये देखिएगा. यस, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर. एक सैंपल आपके पास पास पेपर्स के क्वेश्चन का आ जाए, जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं. अब देखो यहाँ उसने आपको क्या कहा हुआ है. The graph shows the relationship between PV and P at a given temperature for CHF3 and an ideal gas. ठीक है. अब यहाँ उसने क्या किया, उसने आइडियल गैस के लिए ना एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि जो गैस जितनी आइडियल होगी वो इस लाइन पर रहेगी, और जो इससे दूर इधर उधर जाएंगी उसको बोलेंगे दे आर डेविएटिंग फ्रॉम आइडियलिटी. वो आइडियल गैसेस नहीं है, वो आइडियली बिहेव नहीं कर रहे. अब उसने लिखा है कि CHF3 जो है वो आइडियल गैस की लाइन से दूर जा रही है. अब उसने कहा है CHF3 इज नॉट एन आइडियल गैस. स्टेट 3 basic assumptions that scientists make about the properties of ideal gases. तो आइडियल गैसेस के बारे में साइंटिस्ट की क्या assumptions है? मैंने आपको काफी पॉइंट्स बताए थे. एक हमने किया था कोलिजन्स जो हैं वो इलास्टिक होती हैं आइडियल गैसेस में. देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स and the size of the molecule is negligible as compared to the volume of the container. तो हम वो लिख सकते हैं. ठीक है. आप लोगों ने वो 3 पॉइंट्स कोई भी assumption के लिख देने हैं, यहाँ वो आ जाने थे. देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है तो आपको 3 आइडियलिटी के पॉइंट्स लिखने हैं. फिर उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताओ कि CHF3 जो है वो डेविएट क्यों कर रहा है एट प्रेशर ग्रेटर देन 300 atm प्रेशर. तो अगर प्रेशर को ज्यादा किया है तो आइडियलिटी से वो दूर इतना क्यों जा रहा है? ठीक है. तो हमने क्या लिखा है कि एज द प्रेशर इंक्रीजेस द पार्टिकल्स विल कम क्लोज टुगेदर. तो जैसे जैसे प्रेशर को आप ज्यादा करोगे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. सो व्हेन दे कम क्लोज टुगेदर तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स विल नॉट रिमेन निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो इस वजह से हम कहते हैं कि आइडियलिटी का पॉइंट जो है वो कंसिडर ही नहीं होगा, वो वैलिड ही नहीं रहेगा. इस वजह से हम कहते हैं कि वो गैस आइडियल नहीं रहेगी, वो आइडियलिटी से डेविएट कर जाएगी. दिस इज वन ऑफ द स्पेसिमन फ्रॉम वन ऑफ अ वेरी गुड स्टूडेंट. तो मैं हमेशा बेस्ट स्पेसिमन्स को कर देती हूँ. ये एक मोल्स का क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया था इसमें. इसको एक बार आप लोग ट्राई करना, बहुत सिंपल है. इसमें भी देखो पहले बेसिक उसने मोल्स की कैलकुलेशंस करवाई हुई हैं. वुड नॉट इट ऑल्सो इफेक्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? यस इट वुड. बट द पॉइंट इज कि अगर उसने पेपर में क्वेश्चन में सिर्फ प्रेशर का पूछा है तो मैं सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम के हिसाब से ही बता दूंगी.
तो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। अगर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रिलेट करना आ रहा है, यू मे डू सो। You can write that when particles come close together, the intermolecular forces will become strong. So there will be certain intermolecular forces between the particles. तो वो जो point है ideality का, वो नहीं valid रहेगा। ईशा, is that clear? इज़ा, वो भी ठीक है? लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, योर डिस्क्रिप्शन डिपेंड्स ऑन द वे हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। इफ यू नो हाउ टू interrelate all the concepts that you have studied, and if you think that you really can prove your point, then you are free to do so. There is not going to be any restriction as long as the data that you are providing is correct, right? But I would always suggest that whenever examiner is talking about pressure, you know, that's always something that is related to volume, because volume and pressure are two things that go side by side. So if somebody is asking you about the pressure, then that means your first priority should always be to connect it to volume. You know that both of them are inversely proportional. तो पहले वो बात करो, and once you are done, then you can go ahead with the IMF point. ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है। अच्छा, so I was talking about this question. So I'm going to send it to you as well. आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। I will be sharing this specimen with you all. फिर आपने कंपेयर करना है। अगर आपसे ये बेसिक मोल्स की कैलकुलेशंस ना भी हुई, I will be there to help you all. आप इस स्पेसिमेन से देख लेना, फिर भी समझ ना आया मैं बता दूंगी। माय पॉइंट इज कि देखो, 6 मार्क्स की उसने सिंपल कैलकुलेशंस करवाई हैं। उसके बाद वो कहाँ क्वेश्चन लेके गया, एग्जैक्टली वेयर वी स्टार्टेड ऑफ। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलवाया। एम्पिरिकल के बाद उसका पेपर का सिर्फ पैटर्न देखना कितना सेम है। हम लोगों ने एम हवा बनाया होता है, that is exactly similar to the June 2010 question that we did shortly ago. एम्पिरिकल करवाया, एम्पिरिकल के बाद देखो उसने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करवा के उसी तरह एमआर निकलवाई। उसके बाद उसने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दो। स्टूडेंट ने पहले एन निकाला और फिर डायरेक्टली उसमें पुट कर दिया। हालांकि आई रिमेम्बर मैंने इसको डांटा था कि यू डिडंट डू इट राइट, आपको स्टेप्स पूरे करने चाहिए थे, ठीक है। तो मैंने ये जो है एक स्पेसिमेन अटैच किया। आप इस क्वेश्चन को पूरा ट्राई करना अपनी प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद इसी तरीके से मैंने एक और स्टूडेंट का अच्छा स्पेसिमेन अटैच कर दिया था। ये देखो, मैंने आपके साथ ना दो टॉपर्स के स्पेसिमेन शेयर किए हैं। अब आप इन दोनों को देखो, एक मार्क्स दोनों के बहुत अच्छे हैं, बोथ ऑफ देम वर एबल टू गेट द ग्रेड्स, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये था, इस बच्चे को देखो ये सारे स्टेप्स पूरे करेगा, और मैं इस तरह के आंसर्स को बहुत इनकरेज करती हूँ। तो मैंने दोनों का स्पेसिमेन इसीलिए शेयर किया था ताकि आई कुड लेट यू ऑल नो कि इट इज ऑलवेज बेटर टू शो एवरी सिंगल स्टेप। अब देखो इसका, देखो इसने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है, उसने एन का फॉर्मूला भी लिखा है, उसने एन की वैल्यू भी निकाली है, फिर उसने यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई एम्पिरिकल का पुट इन करके भी दिखाई है। सो दिस इज समथिंग जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह काम करो, rather than doing these short ways। काम इसका भी ठीक है, ठीक है, ये वाला जो इसने किया हुआ है यहाँ पे, दिस वन। लेकिन वो वाला काम जो है दैट इज एन एक्सेलेंट रिस्पॉन्स, राइट। तो आप लोगों ने छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसका आपने ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। सो ट्राई टू डू इट, राइट। ओके, सो ये हमारा गेसेस का हो गया। मुझे गेसेस में यहाँ तक बताओ, इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? So we may move ahead to the next part. Any problem, any concern, anything that you all clear? Okay, okay, that's fine. Okay, perfect हो गया। Okay, so then we are going to move ahead to solids. Perfect, fine, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं और कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स में ना हमारे सिलेबस में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटिसेस जिसको हमने पढ़ना है, ठीक है। उसने हमारे सिलेबस में डिफरेंट लेटिस टाइप्स के अंदर जो है वो सारी चीजें कर दी हैं। सो लेट अस डू ऑल ऑफ देम वन बाय वन। मैं कोशिश करूंगी कि वो चीजें पहले करवाऊं जो आप लोगों ने नहीं की हुई, एंड मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट लेटर ऑन। अच्छा, अब लेटिसेस में हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स की हैं। एक हमारे सिलेबस में है मेटेलिक लेटिसेस, एक हमारे सिलेबस में है आयोनिक लेटिसेस,
Then we have simple molecular lattices. And then we have fourth one, giant covalent lattices. So these two types are basically related to the covalent compounds. And this one is related to the ionic compounds. And this one is related to the metallic compounds. And then you should know that all of them are solids. Whatever type I do talk about, every time that's going to be in the solid state. So in other words, I can say this is going to be exhibited by the metallic solids. This is going to be exhibited by the ionic solids. And these two are going to be exhibited by the covalent solids. Right? So this is something that you need to keep in your mind. अब ये आपकी जो four types of lattices है ना, we do say that they exist as crystals. ये solids जितने भी होते हैं ना, they exist in the form of crystals. ये crystals की form के अंदर exist करते हैं. अब हम define कर लेते हैं कि what crystals actually are. crystals होते क्या है हमारे पास, ठीक है? या अगर मैं कहूँ crystal क्या है, या अगर हमारे पास आ जाए कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे. सो वी कैन से दैट इट इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट I hope you all can hear me. Can you all hear me? There probably was some internet disruption, so I tried connecting my internet multiple times, but it failed to do so. Then I had to connect it to the mobile data, so now it's working. No, 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 it was not at your end. My internet got disrupted, but I hope that's fine now. कोई problem हुआ, just let me know. Okay, so let me see if somebody has skipped. Okay, मेरा ही left. No, no, Hafsa, just never do like that. कभी भी ऐसा हो, you can just drop a message to me and you can ask on WhatsApp कि class कहाँ है ये वो. So you know इस तरीके से आप करना. अच्छा, so we were talking about all this stuff. तो उसमें मैं आपको कुछ चीजें बता रही थी.
हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास चार टाइप की लेटिसेस होती हैं, और फिर मैंने बताया कि दीज लेटिसेस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स आर गोइंग टू बी द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड. तो मैं ये बताने लगी थी कि हम जो जहां से काम स्टार्ट करने लगे हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू द कोवेलेंट लेटिसेस. हम कोवेलेंट लेटिसेस से काम करने लगे हैं. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़नी है. अब इसमें देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है, लेटिसेस को डिस्कस कर लेते हैं. सिंपल कोवेलेंट लेटिसेस. अब सिंपल कोवेलेंट लेटिसेस में वी हैव थ्री मेन एग्जांपल्स. पहली हमारे पास एग्जांपल आती है इसके अंदर आयोडीन सॉलिड की. ठीक है. सेकेंड एग्जांपल हमारे पास इसमें आती है आइस की. और थर्ड हमारे पास आती है बकमिंस्टर. I always make a spelling mistake, but I hope, I think it's Minster ही है. Yes. So these are the three types of simple covalent lattices जो हमने पढ़नी है. अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है. वो आपको कुछ प्रॉपर्टीज दे देता है, वो आपको कहता है इन प्रॉपर्टीज को देख के डिफाइन करो कि भाई कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात गलत है. सो यू नो लॉट्स ऑफ स्टफ लाइक दैट. आइडेंटिफाई करो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को देख के कि ये सिंपल कोवेलेंट लेटिस है, जाइंट कोवेलेंट लेटिस या आयोनिक लेटिस है या मेटेलिक लेटिस है, कैसी है. नाउ वी हैव दिस एग्जांपल ऑफ आयोडीन. अब हम आयोडीन की बात करते हैं. देखो, आयोडीन इज लाइक दिस. हम कहते हैं दिस इज एन आयोडीन मॉलिक्यूल I2 विच मीन्स इट इज मेड अप ऑफ टू आयोडीन्स. इस तरह से दो आयोडीन से मिलके बना है. सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि इस आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो. बिकॉज जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक आयोडीन की है, एग्जैक्टली उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरी आयोडीन की है. तो हम कहेंगे द बॉन्ड इज गोइंग टू बी अ नॉन पोलर बॉन्ड. एंड इफ द बॉन्ड इज नॉन पोलर, तो हम कहते थे कि उस चीज के अंदर आईडी फोर्सेस होती हैं या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, जिसको हम समटाइम्स वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी लिख सकते हैं. सो वॉन्डरवॉल फोर्सेस एक जरा जनरल टर्म है, उसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एक स्पेसिफिक टर्म है. तो मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ कि आयोडीन मॉलिक्यूल हैज वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट इन इट. ठीक है. अब देखो बच्चे, इसका अगर मैं लेटिस ड्रॉ करना चाहूँ, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लेटिस सपोज आई टेक एक हम इसका ड्रॉ करते हैं पैटर्न. अब देखो, एट एवरी पॉइंट आई कैन ड्रॉ वन आयोडीन मॉलिक्यूल लाइक दिस. कि एक यहाँ पे आयोडीन पड़ी हुई है. ठीक है. इसी तरीके से वी हैव एन आयोडीन मॉलिक्यूल एट दिस पॉइंट. इसी तरीके से वी हैव एन आयोडीन मॉलिक्यूल एट दिस पॉइंट, एंड यू नो so on like this. So all these points are containing one I2 molecules. अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि सारी आयोडीन्स दूसरे आयोडीन्स के साथ जो कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू वेरी वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस. तो इनके दरमियान में फोर्सेस निहायत वीक होती हैं. ठीक है. तो हम क्या कहते हैं कि इंडिविजुअली जो है वो उसके अंदर वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं. ठीक है, इस तरीके से. फिर आप यहाँ पे देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्लोरीन. फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. मैंने आपको बताया था फ्लोरीन एंड फ्लोरीन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इन सब की कॉमन पॉइंट क्या है कि इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है. ये सब के सब नॉन पोलर हैं. इन सब के अंदर आईडी फोर्सेस हैं या वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं. अगर सब में ऐसा है, तो फिर क्या ऐसी लॉजिक है कि फ्लोरीन फ्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है. तो उसका हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मीन्स कि एम आर इंक्रीज हो रही है. एम आर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
जिसकी वजह से हम कहते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं. सो व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस वी से कि स्ट्रेंथ ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस. तो वॉन डेर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. दिस इज द रीजन why iodine exists as a solid, because iodine के अंदर as compared to fluorine, chlorine and bromine, the van der Waals forces are stronger. So we say कि van der Waal forces जो strong हैं they make it a solid, वो इसको solid बनाती हैं. लेकिन overall वो van der Waal forces हैं तो id forces है ना, and they are very weak. We know कि अगर हमारे पास तीन forces हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, परमानेंट डायपोल है, id है, so id is going to be the weakest force every time, right? तो हमें इस तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की स्टेट्स को जस्टिफाई करना है. अब ओवरऑल अगर आयोडीन की बात करें, हम इसके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं कि क्योंकि id फोर्सेस ही हैं, सो इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड अ लो बॉइलिंग पॉइंट. फिर हम बताते हैं कि इट इज held together in the lattice. It is held together in a crystal lattice by weak van der Waal forces. इसी weak van der Waal forces की वजह से this exists as a substance that has a low melting point and boiling point. फिर इसमें आपको एक जो important point और याद करना है, that is this: iodine at room temperature is a solid, and as a solid it is black in color. ये black in color होता है, but once you start to heat it, this iodine solid will be converted into liquid और फिर वो liquid vapors form में convert हो जाता है. So this iodine converts into a gas. अब solid का gas के अंदर directly convert होना without passing through the gas, the liquid phase is known as sublimation. तो हम कह सकते हैं iodine sublime कर गई. Sublime का मतलब है कि सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो व्हेन इट कन्वर्ट्स, हम कहते हैं तब इसका कलर जो है वो पर्पल होता है या वॉयलेट वेपर्स होते हैं. सो वी कैन राइट कि इसके वेपर्स जो हैं वो वॉयलेंट होते हैं. तो सिंपली वी कैन से कि जब आयोडीन सॉलिड को आप हीट करते हो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो दीज वॉन डेर वाल फोर्सेस आर ब्रोकन डाउन. तो ये फोर्सेस जो हैं दीज आर एक्चुअली ओवरकम. वो सारी की सारी आप ओवरकम कर लेते हो और फिर वो जो है वो आयोडीन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आयोडीन दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. ठीक है. फिर समटाइम्स वो क्या करता है कि वो आपको कंपैरिजंस दे देता है. वो आपको कहता है लेटिस सपोज आपके पास एक लेटिस है I2 की, साथ में कोई आयोनिक सॉलिड दे देता है. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl कर लेते हैं. अब इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस देखो बच्चे. आयोडीन आपके पास एक कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है. मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड आपके पास जो है दिस इज एन आयोनिक स्ट्रक्चर. सो यू कैन सी इफ इट इज अ कोवेलेंट स्ट्रक्चर, छोटा सा साइज है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ कोवेलेंट लैटिस, या जिसको मैं बोल सकती हूँ सिंपल मॉलिक्यूलर कोवेलेंट लैटिस. ठीक है. और आयोडीन आपके पास कैसी लैटिस बनाएगा? आयोडीन के बारे में हम कह सकते हैं इट्स ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म एन आयोनिक लैटिस, राइट. फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनकी फोर्सेस की. सो वी कैन राइट के आयोडीन के अंदर वी हैव वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस, ठीक है. मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड है, यू कैन सी के इसमें पॉजिटिव आइंस हैं, नेगेटिव आइंस हैं, इस तरीके से. तो यहाँ पे वी विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये होती हैं, ठीक है. ये हमारे पास हो गया. इस वजह से हम कहेंगे कि क्योंकि फोर्सेस डिफरेंट हैं दोनों के अंदर, तो आयोडीन जो है इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेटिस है दैट इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट and high boiling point. So you might come across situations like this where you can be questioned कि भाई उसका melting point कम क्यों है, उसका ज्यादा क्यों है. So you need to always remember this. Plus यहाँ पे एक और बात है कि इसके अंदर ये molecular structure है,
एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ आइंस, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं इन दोनों लेटिसेस से रिलेटेड अपने जहन के अंदर रखने हैं। इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। एनी क्यूरी? ओके, सो देन वी हैव, ओके व्हाट अबाउट द रेस्ट? सिर्फ ईशा को समझ आया? व्हाट अबाउट द रेस्ट? आई वांट रिस्पांस फ्रॉम एवरीबॉडी, प्लीज लेट मी नो। ओके, ओके, ठीक है, गुड। अच्छा बच्चे, इसके बाद ना हम एक सिर्फ और करेंगे और फिर मैं आपको इनके पास पेपर्स के क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बल्कि आई थिंक हम पहले क्वेश्चन ही करते हैं तो हमें समझ आएगा। यही जो अभी मैंने जून 2010 का पेपर करवाया है, इसके अंदर अभी मेरी नजर से ये क्वेश्चन गुजरा। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आइए जरा इसको पढ़ते हैं और अटेम्प्ट करते हैं। उसने यहाँ पे लिखा है कॉपर proton number 29 and argon proton number 18 are elements which have different physical and chemical properties. In the solid state, each element has a same face-centered cubic crystal structure which is shown below. यानी वो कहता है कि अगर आप बेशक कॉपर ले लो, बेशक आप ले लो आयोडीन, दोनों के अंदर इस तरह से क्यूब वाला स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस। इस क्यूब के हर एंड के ऊपर जो है आपके पास एटम्स लगे होंगे, ठीक है। तो एक सपोज कर लो कॉपर का है, इसी तरीके से यू कैन सपोज कि यहाँ पे आपके पास आर्गन का है। सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू फॉर्म क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ये मेरे पास आर्गन का हो गया, ठीक है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चे कि जो कॉपर है दैट इज अ मेटल, और जो आर्गन है दैट इज अ नोबल गैस, ठीक है। ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं। अब अगर मेटल है तो मैं कहूंगी कि इसके अंदर इसकी लेटिस कौन सी होगी? इट विल बी अ मेटालिक लेटिस। और जो नोबल गैस है इसको हम कंसिडर करते हैं इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सिंपल कोवेलेंट में फॉल करता है, क्योंकि नॉन मेटल की तरह ट्रीट करेंगे ना, मेटल तो नहीं है यहाँ पे। तो इसका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये हमें समझ आ गया। अच्छा, अब उसने लिखा है द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एनाइंस भी हो सकते हैं, केटाइंस भी। एटम्स कब कब क्रिस्टल में होते हैं? अगर आपके पास कोई नोबल गैस हो, बिकॉज वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, तो आपकी लेटिस में हमेशा एटम्स होंगे। मॉलिक्यूल्स आपकी लेटिस में कब होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टू है, आई टू सॉलिड की एग्जाम्पल की, तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि मैंने हर पॉइंट पे पूरा एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया था ना बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है। वो है एन आइंस और के टाइंस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस कहाँ पे आते हैं लेटिस में? जब आपके पास आयोनिक सॉलिड्स होते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ कैटेगरीज पता लग गई कि लेटिस कैन हैव एटम्स, लेटिस कैन हैव आइंस, लेटिस कैन हैव मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। तो आप ना यहाँ से ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, एक इसको भी अच्छे से याद कर लो। वो समटाइम्स आपको ऐसा कह सकता है कि किसी ऐसे कंपाउंड का नेम लिखो जिसकी क्रिस्टल के अंदर एटम हो, फिर जिसकी क्रिस्टल में मॉलिक्यूल हो, फिर जिसकी क्रिस्टल में एनाइंस और केटाइंस हो। सो दिस कैन पॉसिबली बी आस्क्ड इन एनी क्वेश्चन। ये पूरा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको जो है अपने पास नोट्स में लिख लें। अब उसने आपको कहा है विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द कॉपर एंड आर्गन क्रिस्टल। अब आपने मुझे बताना है माय डियर किड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपर के अंदर क्या है, अब कॉपर के अंदर खुद सोचो, कॉपर इज अ मेटल ना, तो मेटल के अंदर क्या होता है? खुद बताओ मेटल में क्या बनेगा अगर मुझे कॉपर को कंसिडर करना है? केटाइंस होते हैं, शाबाश। तो कॉपर में कॉपर प्लस 2 आइंस होते हैं, वेरी गुड। तो पार्टिकल्स क्या होंगे? हम लिखेंगे केटाइंस होते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा? Cu+2। आर्गन में क्या होगा? यस, आर्गन इज गोइंग टू हैव एटम्स बिकॉज इट्स अ नोबल गैस। और फॉर्मूला क्या होगा? दैट्स गोइंग टू बी Ar, ठीक है। तो उसने इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बता दिया।
अब उसने लिखा है कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें ना, ये बात समझ नहीं आ रही कि रूम टेम्परेचर पे कॉपर सॉलिड क्यों होती है और आर्गन गैस क्यों होती है। एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन ईच सॉलिड स्ट्रक्चर। यानी वो आपको कहता है कि भाई साहब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब आप कंपैरिजन करो। एक तरफ यू कैन टेक कॉपर and at other side you can take argon, and then you can do a comparison that why one exists as a solid and why other exists as a gas, कि भाई ये solid क्यों है और जो ये वाला है ये हमारे पास गैस क्यों है, इसको जस्टिफाई करो। अब हम यहाँ पे ना इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ बच्चे, अगर मैं कॉपर के बारे में बात करूं तो कॉपर के अंदर मैं क्या क्या पॉइंट्स लिख सकती हूँ? एनीथिंग दैट यू हैव स्टडीड प्रीवियसली और आपको याद आ रहा है कि यस दिस कैन बी रिटन हियर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो मैं यहाँ पहले लिखूंगी पॉजिटिव मेटल आयंस are surrounded by a sea of delocalized electrons। तो जब भी आपके पास अकेली मेटल होगी उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है, यू हैव पॉजिटिव आइंस, ठीक है। ऑल दीज पॉजिटिव आइंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देयर इज अ सी ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश। जब भी आपके पास ये होगा ना, अब जरा यहाँ पैटर्न नोट करो, आपके पास पॉजिटिव आइंस हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑपोजिट चार्जेस हो गए, उसकी वजह से हम कहते हैं कि देयर विल बी strong electrostatic forces of attraction between the positive ions and इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आइंस के दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मेटेलिक बॉन्ड। ये मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा और क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, दिस इज व्हाई कॉपर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। अब जरा यहाँ आर्गन पे आइएगा और आर्गन की स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, आर्गन एक नोबल गैस है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही। तो आर्गन के अंदर आपको पहले मुझे बताओ कि फोर्सेस कौन सी समझ रही है, कौन फोर्सेस लिखेंगे? ओनली आईडी आईडी तो हम लिख सकते हैं कि आर्गन हैज वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, या हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में उसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, कुछ भी लिख सकते हैं। शाबाश, ठीक है। तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि इट्स गोइंग टू हैव लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, या इट एग्जिस्ट एज अ गैस। बल्कि यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसने हमें कंपैरिजन नहीं कहा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का करो, तो हम सिर्फ ये पॉइंट बताएंगे। वीक फोर्स, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से वी कैन राइट द नेक्स्ट पॉइंट कि देयर विल बी वीक अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको आंसर में मार्क्स तब मिलते हैं व्हेन योर आंसर इज बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है दैट यू राइट द एंटायर स्टोरी ऑफ कॉपर एंड यू वंडर कि मुझे आंसर क्यों नहीं मिला। For a 4 mark question, examiner wants you to divide your answer in a 2+2 format, which means 2 points should always be written for copper, followed by 2 points for the argon. So you see, I have written down my statement in such a way, मेरे पास बेशक आर्गन की डिटेल एज कंपेयर टू कॉपर कम थी, लेकिन मैंने वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस को फॉरन वीक अट्रैक्शन के साथ रिलेट किया और मैंने उसकी रीजन बना दी। सो दिस इज हाउ यू ऑलवेज हैव टू डू द क्वेश्चन। लेट इज क्विकली कंप्लीटेड। वो कहता है although copper is a very unreactive metal when it is heated to a high temperature in an excess of chlorine, कॉपर टू क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अच्छा, ये हमने अभी नहीं करना, दिस इज अ रिएक्शन, ठीक है। सजेस्ट अ रीजन फॉर द लैक ऑफ रिएक्शन बिटवीन आर्गन एंड क्लोरीन, ये भी अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। Okay. Then we have the other question that is related to the melting point of noble gases. अब बच्चे ये मुझे अब आप लोग करवाओ, उसने आपको melting point का ट्रेंड दिया है noble gases का, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon। उसने कहा है why there is an increase in melting point moving from neon to xenon। क्या आंसर लिखेंगे?
यस, ईशा ने कहा स्ट्रेंथ ऑफ आईडीआईडी फोर्सेस इंक्रीजेस, लेकिन कैसे? यस, हम पहले लिखेंगे कि एमआर इंक्रीज करेगी, एमआर क्यों इंक्रीज करेगी? बिकॉज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। अच्छा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बाद एग्जैक्टली शाबाश, उसके बाद बात लिखनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। सो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ, कोशिश करें वॉन्डरवॉल फोर्सेस जरूर लिखें। वो ना इलेक्ट्रॉन्स को असल में वॉन्डरवॉल फोर्सेस के साथ लिंक करता है, फिर ब्रैकेट में आईडी आईडी लिख दो कि उसमें स्पेसिफिक कर दो इंक्रीजेस, सो द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, राइट? तो आपने इस तरीके से आंसर लिखना था। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो यू कैन सी, देखो बच्चे, समटाइम्स हम किसी चैप्टर को इतना इग्नोर कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि इतना छोटा सा चैप्टर है तो इसमें से क्या ही क्वेश्चन आ सकता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से यहाँ पे आया हुआ है। और फिर आप देखो कि ये जो हमने इसी पेपर में से दूसरा क्वेश्चन किया, 4 मार्क्स का यहाँ पे आया हुआ है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन उसने स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर से पेपर में बना के दिया है, आउट ऑफ अ 60 मार्क्स का थ्योरी वाला पेपर। तो यानी एग्जामिनर इज सो अनप्रिडिक्टेबल, दिस इज माय पॉइंट। नेवर एवर लीव एनी टॉपिक ये सोच के कि यहाँ से तो पेपर नहीं आएगा, उसका मूड बनता है। तो देखो, अब यहाँ हमारे पास ना एज अ टीचर इतने ज्यादा पॉइंट्स थे कि भाई ऑर्गेनिक इतनी मुश्किल है, वहां से दे दो, वो चैप्टर इतना मुश्किल है, वहां से दे दो। लेकिन उसने वो एरियाज असेस किए जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, अनटच्ड रहने देते हैं, अच्छा ये तो बहुत ईजी है, लेट अस स्किप इट आउट। और उसने सारा उसमें से पूछ लिया, 15 मार्क्स एक तरह के रफली पूरे करवा दिए कि अब बैठ के करूं। ठीक है? सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। आर यू गाइज क्लियर अबाउट टुडेज वर्क? एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग दैट यू गाइज वांट टू आस्क? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? कल इंशाल्लाह हम इसकी बाकी सारी टाइप्स को कंप्लीट करेंगे, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन अप टिल दिस पॉइंट? इज एवरीबडी क्लियर?